Good morning, students. In chapter 4, I shared two parts better. In first part, I told you about two types of mixture that are homogeneous and heterogeneous mixture. Then in second part, I told you about separating the components of mixture, means three types of mixture: solid and solid, solid with liquid, then liquid with liquid. I had already shared solid and solid mixtures, how they can be separated, means different techniques used to separate solid and solid mixture, like hand picking, threshing, then winnowing. After that, sieving, then magnetic separation and sublimation. Now beta, today I am going to share next topic, mixture of solid with liquids. Beta, there are some solids which get dissolved in liquids and some solids do not dissolve in liquid. Means these are of two types. Number one, in which solid dissolves, and number two, in which solid do not dissolve. Firstly, I will take separating solids that dissolve in liquids. Means what are the different techniques used to separate the solids that dissolve in liquids? The different techniques or the different methods are evaporation. Then I will explain you crystallization. Means evaporation, crystallization are for those solids that dissolve in liquids. Beta, you must have seen salt dissolved in sea water. आपको पता है समुद्र के पानी के अंदर नमक घुला हुआ होता है, तो वो कैसे सेपरेट किया जाता है बेटा? समुद्र के पानी के अंदर जो नमक घुला हुआ होता है उधर समुद्र के साथ में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, सन की हीट से वाटर इवेपोरेट हो जाता है एंड द साल्ट पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड. ऑन एन एवरेज a liter of sea water contain about 36 ग्राम of edible salt. जो आप साल्ट घरों में खाते हो वो समुद्र के पानी से मिलता है और 1 लीटर पानी के अंदर अबाउट 36 ग्राम ऑफ साल्ट होता है. बेटा, इसको हमने इवेपोरेशन टेक्निक से सेपरेट किया है. अब इवेपोरेशन होता क्या है? अगर बाई चांस हमें घर पे करना पड़े या लेबोरेटरी में करना पड़े तो आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है. आपके घरों में कॉमन साल्ट होता है जो आप नमक खाते हो घरों में. फिल हाफ बीकर विद वाटर एंड डिजॉल्व 2-3 स्पून्स ऑफ साल्ट इन इट एज मच एज यू कैन डिजॉल्व. ओके, नाउ टेक अ चाइना डिश. I will show you the china dish also. Beta, this is a china dish. I will show you the activity better that commonly we use in our laboratories. Now, we have to take this salt water in a china dish. These are the this is the tripod stand. There is a wire gauge on the tripod stand for equal distribution of heat. In the china dish, there is a
salt water, you have to heat it, keep on heating until all the water get evaporated. जब तक हीट करते रहो जब तक पूरा पानी इवेपोरेट नहीं होता है. एट द एंड white particles of salt are left in the china dish. बेटा आप इस एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हो, लेकिन साथ में पेरेंट्स होने चाहिए. इसमें क्या होता है, आप पानी को, इस नमक के पानी को आप आपके घरों में फ्राई पैन होता है, उससे थोड़ा सा नमक का पानी 4-5 स्पून ले लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है. 4-5 स्पून मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर. आप फ्राई पैन में डाल के गैस पर गर्म कर सकते हो. वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पहले तो बॉयल करेगा फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा. एंड एट द एंड वाइट क्रिस्टल्स और वाइट पार्टिकल्स ऑफ साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. नाउ अदर मेथड for separating solid from the liquid is crystallization. Crystallization क्या होता है बेटा, सुनो. There is a beaker, water is taken in a beaker and the sugar is dissolved in it as much as we can. Means the saturated solution of sugar is made in a beaker. Now heat this saturated solution and in between stir the solution occasionally. बीच बीच में आप इसको stir करते रहो. At the end you will see the crystals of sugar on the rod. Means आपको इसके ऊपर crystals दिखाई देंगे, दाने दाने. आमतौर पर ये मेथड हलवाई यूज़ करते बेटा. जब उनके पास रसगुल्ले की चाशनी बच जाती है, हलवाई करते हैं या शादी वगैरह में जब मिठाई बनवाते बेटा, वो जो चाशनी बच जाती है, वी यूज़ टू हीट दैट शुगर सॉल्यूशन. वाटर गेट इवेपोरेटेड. एट द एंड यू विल फाइंड पाउडर्ड शुगर. आपको पाउडर शुगर मिलेगी, जिसे हम बूरा भी कह देते हैं आम भाषा में. तो ये जो छोटे छोटे पाउडर्ड हैं, ये क्या हैं, ये क्रिस्टल्स हैं. दीज आर द स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. वी हैव कलेक्टेड सी वाटर. आफ्टर सम टाइम when water get evaporated and we are left with salt, but still the salt contain impurities. जब समुद्र के पानी को इकट्ठा करके पानी इवेपोरेट कर दिया जाता है, जो नीचे साल्ट आता है, अभी उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं. उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड. Crystallization is a process in which we separate a pure solid in the form of crystals from a saturated solution. इसमें क्या होता है, आपको जैसे ही क्रिस्टल बनने लग जाते हैं इसमें बेटा, आपको उसको ठंडा होने के लिए रख देना पड़ता है कुछ देर के लिए. जैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर स्टिर करते रहो, आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. शुगर की हैं या साल्ट की हैं, यू गेट द क्रिस्टल्स लाइक दिस ओनली. अब ये मेथड और कहाँ यूज होता है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस मेथड? इट इज ऑफनली यूज्ड. फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी डन. साल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर. नंबर 2 एलम. एलम होती है फिटकरी. आमतौर पर शेविंग वगैरह के टाइम पर ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है बेटा इसको. और ब्लू विट्रोल, जिसे नीला थोथा कहते हैं, ब्लू कलर का साल्ट होता है. अगर वो इम्प्योर है तो वी यूज टू सेपरेट इट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 2 methods of separating those solids which get dissolved in liquid.